لیکن آپ وزیر رہ کے آپ نے کیا کچھ دیکھا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں۔ سب سے پہلے تو ایک چیز واضح ہونا ہی چاہیے کہ میڈیا کے اوپر جی جی میرا نام آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ وزیر رہ چکا ہے۔ نہیں ماشاءاللہ آپ ینگسٹر ہیں، ہمیں مطلب فخر بھی ہے، اثاثہ ہو۔ بالکل، میں نے بڑی کوشش کی ہے نوجوانوں کے لیے، لیکن ایک چیز ہم اگنور کرتے ہیں، وہ یہ تھا کہ وزیر کے سامنے ایک اور لفظ بھی تھا۔ آواز آپ لوگوں کے، جیسے آپ میڈیا کے حضرات ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے بہت سنی جا رہی ہے الحمدللہ۔ ایک لوگوں کو یہاں جو بیٹھتے ہیں اسلام آباد میں، ان کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں بڑے دور دراز تک جاتی ہے بات، ہر ملک میں جا رہی ہے، ہر ملک میں جا رہی ہے۔ تو لیکن افسوس یہ ہے کہ جو پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہیں ان تک نہیں جا رہی۔ ہاں، یہ وہ جو پردے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں کانوں پہ، وہ شاید ان کو نکالنا پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، اس وقت میں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے جو کھلا گراؤنڈ ہے، کئی دنوں سے ادھر احتجاج بھی چل رہا ہے، اور پہلے مارنگ بلوچ صاحبہ تھی، پھر مطلب جناب نوابزادہ رئیس خان، جمال رئیس خان صاحب آئے ہیں، اور آج پھر تیسری پارٹی ایک کے پی کے سے بھی آ گئی ہے، اور ایشو تقریباً سارا ایک ہی ہے۔ تو جناب نوابزادہ جمال رسانی صاحب دی محبت ہے، انہوں نے جس ویلے بھی اساں بلایا انہوں اس ویلے میرے کھڑے ہو گئے، میں انہوں نے مشکور ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر رضوان صاحب بہت شکریہ، کی حال چال نے؟ اللہ کے ساتھ۔ سردیاں دے دن کیسی گزر رہی ہے؟ بس گزر رہی ہیں آپ کے سامنے، سردی تو بہت ہے، بس اللہ، ہم تو انتظار میں ہیں کہ کب حکومت وقت احساس کرے گی۔ آپ نے ایک کام اچھا کیا جو بچے اور عورتوں کو بھیج دیا ہے، بالکل، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ ان بیچاروں کو تو وہ ذاتی ہو، کیونکہ وہ پہلے سے اتنا انہوں نے دیکھا ہے زندگی میں، یہاں بٹھا کے، اور ابھی تو ہماری امیدیں بھی ٹوٹ رہی ہیں حکومت سے کہ وہ بھی ابھی نہیں آئے ہیں۔ چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے پیش کی ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں دکھا رہا، تو سیریس نہیں لے رہا، شاید انہیں ہمارے شہداء کا قدر نہیں ہے، پتہ نہیں، تو اس میں دیکھیں گے ابھی کیا آتا ہے۔ کیا کہیں گے کہ یہ جو مطلب ہے، خاص کر ادھر پہلے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں ایک آج سوال کروں گا کہ ہم سے بھی کئی دوست پوچھتے ہیں کہ یار آپ جاتے ہو تو یہ بھی تو پوچھو، یہ آپ کی ٹائمنگ کچھ ٹھیک نہیں لگی، یہ کیا ہے؟ ویسا مطلب ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے زخم ہیں، آپ کے والد شہید ہوئے ہیں، آپ کے بھائی شہید ہیں، کزن شہید ہوئے ہیں، تو یہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ آپ کی ٹھیک نہیں تھی، باقی ٹھیک ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ ابھی ہم 2 مہینے ان سے پہلے آئے تھے یہاں پریس کلب میں، ہم نے مظاہرہ بھی کیا یہاں ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اس سے قبل بلوچستان میں ہم نے کئی دفعہ اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرایا ہے، اور شہداء کا جو سلسلہ ہے وہ مسنگ پرسن سے پہلے تھا، ٹھیک ہے نا؟ جب سے پاکستان بنا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے قربانی دی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ہمارا جمہوریہ کیا ہے، ہم جب بھی بالکل، ٹھیک ہے نا جی، تکلیف کسی کو نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں، ہماری ہمدردیاں آپ کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہونی چاہیے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم سے تکلیف ہو رہی ہے، خواہ وہ، میں غلط تو نہیں سوال کیا؟ نہیں، بہترین سوال کیا، اور لوگوں کو جاننا چاہیے نا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کاؤنٹر کرنے کے لیے آئے، کاؤنٹر، ہم کیوں کاؤنٹر کریں گے؟ ہمارے مائیں اور بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمارے بلوچ رسم و رواج کے تقاضے سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمیں ان کی بھی قدر ہے، ان کو ہماری قدر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایجنڈا کے تحت وہ ہم بیٹھے ہیں یہاں، کل کے دن ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک ایجنڈا کے تحت بیٹھے ہیں، تو مناسب نہیں ہوگا نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے شہداء کے لیے آئے ہیں، ان کا حق ہے بیٹھنا، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں، میڈیا ان کی طرف کیوں، ان کی طرف وفد گیا، اس میں مرتضیٰ سولنگی صاحب تھے، دوسرے منسٹران تھے، ہمارے طرف یعنی مرکز سے ہمارے طرف سے تو صرف جان اچکزی صاحب آئے ہیں، یا ان کی طرف آئی جی صاحب گئے، دوسرے کافی لوگ جاتے رہے، میں نے خود کوریج کی ہے، ہمارے طرف تو صرف جان چکزی آئے ہیں، اور کوئی بھی نہیں آیا، کوئی سینیٹر ہمارے طرف نہیں آیا، کوئی ادھر تو جماعت اسلامی کی بھی آئے ہیں، میں نے خود کوریج کی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ مطلب اگر ہمیں ریاست بٹھاتا یا ہم کاؤنٹر کے لیے آتے تو ہمارے ہاتھ میں تو پاور جو اسٹیئرنگ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا، ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا۔ ہم کب سے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ آئیں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سنیں آپ، کوئی نہیں آتا، کوئی احساس نہیں رکھتا، تو یہ تو کلی تضاد ہے، اور اس کے اوپر ہمیں سبوتاج بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے گریز کرنی چاہیے، حقائق کو آگے سامنے رکھ کر پھر کچھ کمنٹس پاس کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ان کا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ
पुरअमन तरीके से वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा जमाल भाई, आप तो वज़ीर भी रहे हैं, देखें ना, जो ज़ाहिर चीज़ वज़ीर होता है उसके पास जो पावर होती है, मतलब उसको पता होता है ये क्या हो रहा है। तो आप तो माशाल्लाह, चलो वो तो कहते हैं जी हम तो खाना बदोश हैं, लेकिन आप वज़ीर रह के आपने क्या कुछ देखा है कि ये मसला क्या है, ये हमारे नाज़रीन को ये बता दें। सबसे पहले तो एक चीज़ वाज़ेह होना ही चाहिए कि मीडिया के ऊपर जी जब जी मेरा नाम आता है ना, वो कहते हैं ये वज़ीर रह चुका है। हाँ, नहीं माशाल्लाह आप यंग सर हैं, हमें मतलब फ़ख्र भी है, असासा हो। बिल्कुल, मैंने बड़ी कोशिश की है नौजवानों के लिए, लेकिन एक चीज़ हम इग्नोर करते हैं, वो ये था कि वज़ीर के सामने एक और लफ्ज़ भी था, वो था निगरान। अच्छा हाँ चलो ना? कोई बात नहीं, लेकिन मतलब वज़ीर वज़ीर ही होता है जनाब। जब निगरान वज़ीर 3 महीने के लिए आता है, वो कुछ इश्यूज उठाता है, उसको सब हाईलाइट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग उनके ऊपर, उनकी इश्यूज के ऊपर पिछले कई सालों से सियासत कर रहे हैं और 5 साल के लिए इक़्तिदार पर भी बैठते हैं, उनकी कारकर्दगियों पर कोई सवाल नहीं उठाता। ये भी कुल तज़ाद है ना। तो कहने का मकसद ये है, जब मैं वज़ीर था, निगरान काबीना में जब कोई प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, वो होता है कैबिनेट प्लेटफॉर्म, क्योंकि असेंबलियाज होती नहीं है, ना ही कौमी असेंबली होता है, ना ही सूबे असेंबली होता है। और जहाँ तक कैबिनेट का सवाल है, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से भी मैंने बात की है और शोधा के हवाले से भी मैंने बात की है, ठीक है। क्योंकि एक निगरान हुकूमत में आप मेजर डिसीजंस ले नहीं सकते, तो हमें इसलिए ये कदम उठाना पड़ा कि हम आगे जाकर अपने सुप्रीम कोर्ट से, अपनी जुडिशरी से, ये हम असेंबली तक कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी हो, इलेक्शंस आने वाले हैं, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसमें एक शोधा की जो नरम दिली है, उनके लिए अप्रिशिएशन है, वो रखा जाए। अच्छा, ये गुजारिश करूँगा कि आपने ये जो शोधा का उठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें आपका पूरा एजेंडा क्या है? एजेंडा हमारा क्लियर है। सबसे पहले तो हमें इंसाफ दें। आपकी मोहब्बत, आप मतलब कई दफ़ा मुझे इंटरव्यू दे बैठे हैं, लेकिन कई नए लोग भी सुनते हैं ना। इंसाफ है। दूसरा प्रिंसिपल हमारा है, हमारे शोधा के लवाकिन को हक देना। मतलब है उसमें हक का हक मतलब क्या होना चाहिए? देखिए जी, यहाँ जो हमारा शोधा फोरम का प्लेटफॉर्म है, इसमें हमारे साथ सिविलियंस भी हैं, ठीक है, पाक अफवाज के नौजवान भी हैं जो शहीद हुए हैं, पुलिस के भी हैं, बिल्कुल, ठीक है ना जी। मकसद ये है कि अगर कोई सिविलियन का बच्चा, वालिद शहीद होता है, उसका बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी तालीम, उसका खर्चा, ये उसके मतलब एजुकेशन और मतलब हेल्थ तक, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बहुत अच्छा होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। दूसरा जो पहला है इंसाफ हर कोई चाहता है। मेरे वालिद को किसी ने शहीद किया तो मैं जानना चाहता हूँ कौन था इसके पीछे। भाई को शहीद किया, हमारे ऐसे फैमिलीज हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनको प्यारों को किसने शहीद किया। तो ये एक जेन्युइन डिमांड है और एक ऐसा डिमांड है जिसमें हमारा ये अनएलिनेबल राइट है कि हम अपने जुडिशरी से भी ये कर सकते हैं, अपने गवर्नमेंट से भी ये कर सकते हैं, अपने इदारों से भी ये कर सकते हैं। जमाल भाई, क्या बात, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, क्या बात है, कितने दूर से आपको इधर आना पड़ा और आप उधर भी एहतजाज कर रहे हैं, फिर इस्लामाबाद में आप कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लेके आए हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि जो एहतजाज हमने बलूचिस्तान में की, हमें सुना नहीं गया। अच्छा। हमारी आवाज़ यहाँ तक पहुँचती नहीं है, तो शायद हमने इसी उसमें आकर हमने ये फ़ैसला किया कि इस्लामाबाद आएंगे, शायद हमारे आवाज़ को सुनी जाएगी। लेकिन मायूसी सा आप देख रहे हैं, लोगों के आंखों में भी मायूसी है। शोधा के अलावा आवाज़ तो जा रही है ना, आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ जा रही है, कुछ सुने या ना सुने, ये अलग बात है। ये आवाज़ आप लोगों के, जैसे आप मीडिया के हजरात हैं, आप लोगों की वजह से बहुत सुनी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक लोगों को यहाँ जो बैठते हैं इस्लामाबाद में, उनको पता भी चल रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, बड़े दूर दराज तक जाती है बात, हर मुल्क में जा रही है, हर मुल्क में जा रही है। तो लेकिन अफसोस ये है कि जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे हैं उन तक नहीं जा रही। हाँ, ये वो जो पर्दे उन्होंने पहने हुए हैं कानों पे, वो शायद उनको निकालना पड़े। वो अल्लाह बेहतर जाने, हम तो दुआगो हैं कि मुल्क में अमन आए, खुशहाली है। अच्छा सॉरी, एक बात, ये जो मतलब एक नाखुशगवार वाक़या वो ईरान से जो हो रहा है, क्योंकि आप तो बॉर्डर के साथ होते हैं, हमने तो बलूचिस्तान देखा नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे कि ये भी कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं है क्या? देखिए जी, पहल ईरान से हुआ था और एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जो मुल्क अपने सोवेरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है वो बहुत वीक होता है। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जब भी दुश्मन ने ललकारा है और हमारे सोवेरेनिटी को
उन्होंने इन्वेट करने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है। ठीक है ना जी। और खिराज तहसीन पेश करनी चाहिए अपने फोर्सेस को, बिल्कुल, जिन्होंने, क्योंकि प्रोपेगेंडा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि बच्चे शहीद हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। BLA ने खुद कबूल किया कि हमारे सरमचारों को मारा गया है, ठीक है ना जी। तो अगर ये प्रोपेगेंडा चल रहे हैं कि बच्चों को शहीद, लेकिन प्रोफेशनलिज्म को हमें जो पाक फौज की है उसको माननी चाहिए कि उन्होंने ये प्रोफेशनल तरीके जवाब दिया, मुंह तोड़ दिया है, ठोक के डिप्लोमेटिक भी जवाब दिया है उनको, और जो फायर है उस पर भी जवाब दिया। तो हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, हमें फ़ख्र है अपने फोर्सेस पर। बहुत शुक्रिया जमाल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये खान साहब उधर से आए हैं KPK से, मैं ज़रा इनसे भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये इनके भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। पहले तो हम आपका ये अफसोस करते हैं कि आपका भाई है। मेरा बिल्कुल गांव का है, गांव का है, और वहाँ पर ये एक सियासी और समाजी शहरी है, बड़ा ही मकबूल है लोगों के अंदर। अच्छा, पूरा आपका पहले ज़रा सॉरी आपका पूरा नाम बता दें। मैं इफ्तिखार अहमद ख़ान, सदर तामीर नौशहरा तहरीक। ठीक है। अच्छा, आप ज़रा उस भाई की स्टोरी बताएं कि क्या हुआ। तो आबिद अली ख़ान साहब जो हैं हमारे वहाँ पर एक रियल एस्टेट बिज़नेस से वाबस्ता शख्सियत हैं। अच्छा। और काफ़ी उनका एक नेक नाम है वहाँ पर। अच्छा। लेकिन गुज़िश्ता 7 महीने से वो लापता हैं। अच्छा। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें अगवा किया गया है या उन्हें गिरफ़्तार किया गया। अगर गिरफ़्तार किया जाता तो यकीनन हम समझते हैं कि रियासती इदारे उसके ख़िलाफ़ FIR काटते और उसे अदालत में लाते और वहाँ पर हमारी तसल्ली भी हो जाती कि चले यार, हमारा भाई जो है वो किसी जुर्म में मुलजिम की हैसियत से पकड़ा गया है। तो फिर हम अपनी कोशिश करते, अगर होता तो ठीक था, नहीं तो पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान जैसे उसके साथ सलूक करना चाहे सरबजशम हम कबूल करेंगे। लेकिन हमें अफसोस इसी बात का है कि एक 7 माह गुजर गए हैं, वहाँ पर उनके वालिदैन के ऊपर क्या बीत रही होगी। हर नया दिन उनके लिए एक नई उम्मीद के साथ, सही बात है, और एक नई गम के साथ शाम होती है और एक नई उम्मीद के साथ सुबह होती है। तो ये एक बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल होती है। मैं ये समझता हूँ कि रियासती इदारे जितने भी हैं बशमूल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो इस दर्द को समझते होंगे यकीनन। वो भी इसी तरह के हज़ारों शोहदा के सरखेल हैं, सालार हैं, और बहुत बड़ी फ़ौज, पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, उसके सिपह सालार हैं। जी जी। यकीनन उनको इस दर्द का ज़्यादा बखूबी एहसास होगा। मेरी तो यही गुजारिश है कि तमाम मुख्तदिर हलके इस बात को समझने की कोशिश करें, और आबिद अली ख़ान अगर उन्हें अगवा किया गया है तो हमारी यही दरख्वास्त है, यही तमन्ना है, यही आरज़ू है, और यही हम अपनी फरियाद लेकर आए हैं कि उन्हें जल्द से जल्द बाजियाब करा करके अपने अहले खाना के पास वापस बाइज़्ज़त तरीके से पहुंचाया जाए। मैं किसी चैनल पे सुन रहा था, आप कह रहे थे कि कुछ लोगों ने, आपके पास कुछ CCTV फुटेज भी है, कोई वीडियो है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, गाड़ियाँ तो मुख्तलिफ रंग बदल कर आ सकती हैं, ज़ाहिर चीज़ है, प्लेट बदल सरकारी प्लेट लगा कर आ जाए या गैर सरकारी प्लेट लगा कर आ जाए। हम तो रियासती इदारे के ऊपर कोई इस तरह का गुमान भी नहीं कर सकते कि वो एक मुअज़्ज़िज़ शहरी को इस तरीके से उठा कर ले जाए। हम तो यही गुमान करते हैं कि उन्हें अगवा किया गया है। ठीक है। और अगवाकार कोई इंडिया से या अफगानिस्तान से तो नहीं आए होंगे। अगर वहाँ से आए भी होंगे तो कहाँ से गए? बॉर्डर सील होता है, बॉर्डर से आना जाना कोई आसान काम तो नहीं है। यकीनन वो पाकिस्तान की हदूदात के अंदर ही होंगे, जहाँ पर भी होंगे। हमारी ये मुकम्मल 100% उम्मीद है, और हम इसी उम्मीद की बिना पर यही समझते हैं कि हमारे इदारे अगर वो अगवा किए गए हैं तो उन्हें बाजियाब करें। सर, आपने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद किसी अदारे ने या किसी अपना मुतल्लिका फर्द ने आपसे रब्ता किया है? देखिए जी, अभी तक किसी ने कोई ऐसा रब्ता नहीं किया। अगर राबिता हो जाता तो हम मुनासिब नहीं समझते कि फिर हम यहाँ आते। अगर राबिता हो जाता तो फिर हम बिल्कुल यहाँ नहीं आते, लेकिन राबिता नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर आए हैं, और हम ये इस उम्मीद के साथ आए हैं कि इस्लामाबाद ने माँ जैसा किरदार अदा करना है, और जब किसी बच्चे को तकलीफ़ पहुँचती है तो वो अपने माँ बाप के पास ही जाता है। इस्लामाबाद हमारे लिए माँ बाप की हैसियत रखता है। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह पाक आपके प्यारों को जो मिले। और ये नाज़रीन, ये दुख की घड़ी है इन लोगों के लिए। अल्लाह पाक करे कि इन लोगों के मसाइल हल हो जाएं, क्योंकि लोग दूर दराज से उम्मीदें लेके आ जाते हैं। और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। नेक दुआओं के साथ मलिक नवाज़ शौकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना।